Very good morning, students. As we are doing chapter minerals and energy resource, we have already done minerals, type of minerals, their occurrence. Today we will discuss conservation of minerals, energy resources, their type, conventional and non-conventional source of energy, conservation of energy resources, some map work and some important questions. After this topic, you will be able to know about importance of minerals, their judicious use, why and how to save them. You will know about energy resources. You will be able to differentiate between conventional and non-conventional source of energy. You will also know about renewable and non-renewable source of energy. You will be able to know different way how to save energy, and after this topic you can easily locate some nuclear and thermal power plants across our country. Now let's start with conservation of minerals. Why? पहला क्वेश्चन है कि हमें मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए. एज यू नो, minerals are very important for us. They are the backbone of economic development of any country. They can fulfill our needs but not greed. We need to conserve our minerals resources because even if they are more in quantity, they are going to become to an end one or another day. Even they are renewable resources, but they took millions of years to get renewed. And we conserve minerals for our future generations also. So why we should conserve minerals? They are limited. They took millions of years to renew. They are not renewables, and we conserve for future generations. Now the question is, how can we conserve them? कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं? A concerted effort has to be made in order to use our minerals resources in planned, judicious and sustainable way. Improved technology need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost. क्या है कि अब हम उच्च क्वालिटी के मिनरल्स को, उच्च क्वालिटी की ओर का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जल्दी ही क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. इसलिए हमें उन टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है जो लो ग्रेड ओर का इस्तेमाल कर सके. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 3R: रिड्यूस, reuse, recycle. Reduce the cost of mining, reduce unnecessary use of minerals, reuse them like old books, clothes, wooden materials, pots, etc. क्या होता है बच्चों, कई बार हमारे घर में, जैसे आप लोग भी करते होंगे, पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराना लकड़ी का सामान, चेयर्स, पोट्स होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, यूजलेस हम इसके. नो, वी कैन रीयूज देम. अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो द बेस्ट वे दैट यू कैन डोनेट देम. आप उनको डोनेट कर सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनका हैप्पीली इस्तेमाल करेंगे और वो रीयूज होंगे. रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट आर स्टेप इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज. हमें उस मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो इजीली रिसाइकलेबल हो. हमें मेटल्स की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको रिसाइकिल किया जा सके. फर्दर इंटेंसिफाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट इज आल्सो रिक्वायर्ड. नए नए जो मिनरल्स जहां मिलने की संभावना है उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेज. You know, we need energy or power in our daily life at each and every step. Like we require energy to cook food, for heating, lighting, drive the vehicle, in each and every step of life. And how can we get this energy? We can get this energy in the form of coal, petroleum, natural gas, atomic energy, solar, water, different kind of energies. Further, we can divide these energy resources into two categories, and these categories are conventional
or non-renewable or traditional source of energy. These are also known as common in use source of energy. Conventional source of energy are those which we are using since ago. That's why they are traditional source of energy, जो हमारे फोर फादर, दादा, उनके दादा हजारों साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। इस तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दोज वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉन रिन्यूएबल, नॉट इजी टू रिन्यू। Second is non-conventional source of energy. These are renewable source of energy that can be renewed, replaced. We can use them again and again. They are not common in use. बहुत कम इस्तेमाल होता है, हर लोग इस्तेमाल नहीं करते किसी वजह से, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। Now let's discuss fossil fuels. In fossil fuel we include coal, natural gas and petroleum. Fossil fuels are energy resources that form from the buried remains of plants and animals that lived millions of years ago. You know very well the formation of coal and petroleum formations, कि जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स बरीड हैं, वेस्टेज हैं, धरती के अंदर दबे रहते हैं। धरती की हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से हजारों साल लगते हैं उसको कोयला या पेट्रोलियम बनने में। भारत में जो मुख्य कोयला है वो मोर देन 67% कोल इज यूज्ड इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। 67% से ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। अब है भारत में कितनी तरह का कोयला मिलता है? भारत में मुख्यतः 4 तरह का कोयला पाया जाता है। फर्स्ट, पीट। दिस इज फाउंड एट द शैलो डेप्थ। ये बहुत अधिक गहराई में नहीं, पहले ही मिल जाता है। इट कंसिस्ट near about 60% carbon and more moisture. It is not good as a fuel because it release more smoke. ज़्यादातर गाँव में जिसको हम कच्चा कोयला कहते हैं, जो धुआं करता है, वो पीट है। As the sediment buries the peat, increase the pressure and temperature of the earth. जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर धरती का बढ़ता है, this gradually turn the peat into lignite. Second type of coal, that is lignite. पीट जो है वो कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में। इट कंसिस्ट 70% कार्बन। थर्ड, आप देख सकते हैं बिटुनिमस कोयल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोयल। इट इज द कोयल दैट इज यूज्ड एट द कमर्शियल लेवल। इंडस्ट्री और कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल जो होता है वो आपका बिटुनिमस कोयल इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट नियर अबाउट 80% कार्बन। And the most important quality of coal, that is anthracite. It consists more than 80% carbon. The higher the carbon content, the cleaner the fuel. So these 4 type of coal is found in our country. Next is fossil fuel, that is liquid fossil fuel, petroleum. Petroleum or mineral oil is the major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricant for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries work as nodal industries for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. अब आपको पता होगा बच्चों, रिफाइनरीज का मतलब पेट्रोलियम भी धरती की गहराई से निकाला जाता है एंड इट इज फाउंड एज द क्रूड ऑयल. इट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी ऑयल्स लाइक एस्फाल्ट, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, चारकोल. ये सीधा पेट्रोल नहीं मिलता, उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में. एंड दीज रिफाइनरीज आर आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. भारत में ज़्यादातर पेट्रोलियम मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन आवर कंट्री. अंकलेश्वर is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state in country. Digboi, Naharkatiya and Moranjugjigan are the important oil field of Assam. Then natural gas. Natural gas is an important clean energy resource found in association or without petroleum. आपको पता है natural gas being light, petroleum के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है. It is used as a source of energy as well as
industrial raw material in the petrochemical industries. Natural gas is considered as environment friendly fuel because of the low carbon dioxide emissions, and it is also known as the fuel of the century. The 1700 km long Hazira Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline link Mumbai high basins with the fertilizer and power generation industrial complexes in western and north country. भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट के जो फर्टिलाइजर और पावर जनरेशन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सप्लाई करती है गैस हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जो इंडिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप अच्छे से जानते हो, सब इस्तेमाल करते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। Electricity has such a wide range of application in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generally generated in two ways. दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। Running water which drive hydro turbines to generate hydroelectricity, and we use raw material like coal, petroleum and natural gas, that is known as the thermal power electricity. Thermal power station or thermal electricity is considered as conventional source of energy, non-renewable, because the raw material used in thermal power station like coal, petroleum, natural gas, it cannot be renewed. दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। Hydroelectricity, it is the part of non-conventional source of energy. Now let's discuss non-conventional source of energy. कौन कौन से हैं जो गैर परंपरागत है, जिनको हम डेली इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं? वो हैं विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। विंड एनर्जी, जैसा कि आप देख नाम से ही पता है, विंड इट कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट बिकम्स विंड एनर्जी. India has great potential of wind and power. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagercoil to Madurai. Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms. ज़्यादातर बच्चों आपने देखा ना, जो कोस्टल एरियाज़ के हमारे प्रदेश हैं वहाँ पे विंड एनर्जी ज़्यादा सुटेबल है। और विंड जो वेलोसिटी है, आपको पता होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि इट आल्सो अफेक्टेड विद द सोलर हीट। सूरज की जितनी गर्मी होगी, जो धरती का सरफेस गर्म होगा, तो उतनी ही जो है विंड की वेलोसिटी होगी। तो नागरकोइल एंड द जैसलमेर, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसलमेर में बहुत बड़ा एक जो है विंड प्लांट लगाने जा रही है। एंड नागरकोइल इन तमिलनाडु आल्सो ए ग्रेट स्कोप फॉर विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो रिमोट और अपने रूरल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। सोलर एनर्जी, वी यूज फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी इज द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज. सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भारत में, वो जैसलमेर में लगाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स लगते हैं, सनलाइट जब आती है सोलर पैनल से, जो सोलर हीट को कन्वर्ट किया जाता है फोटोवोल्टिक प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इज नोन एज सोलर एनर्जी। यह नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि सूर्य की रोशनी के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, इसके इस्तेमाल से यह ख़त्म नहीं होती। सबसे सस्ता और सबसे उत्तम साधन है यह। देन न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. When such an alteration is made, a huge amount of heat is released, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and Aravalli Hills area of Rajasthan, are used for generation atomic or nuclear power. Monazite sand, ध्यान से सुनिए बच्चों, monazite sand that is found in Kerala, also rich in thorium and used as a raw material to generate electricity. और इसमें क्या है बच्चों, किस तरीके से जब हम यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, जब हीट जनरेट होती है, फ्रॉम दैट हीट वी बॉयल वाटर एंड दैट वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड दैट स्टीम इज यूज्ड टू रन द टरबाइन. जो टरबाइन चलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. और एक पैलेट जो
यूरेनियम का है वो मोर देन 1 मीट्रिक टन ऑफ कोल के बराबर हीट रिलीज करता है। नेक्स्ट वाटर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पहले कर चुके हैं। व्हेन द वाटर फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा कि डैम का कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज आल्सो डन नॉट ओनली फॉर द यूज ऑफ वाटर पर्पसेज बट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। डैम को बनाया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को फिर ऊंचाई से गिराया जाता है। जब वो पानी ऊंचाई से गिरता है तो वो किस पे गिरता है, वो आपका गिरता है टरबाइन पे। जब वो टरबाइन चलती है तो उससे जनरेटर कनेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डैम है, ऊपर से पानी गिरता है, लाइक भांगड़ा डैम, टिहरी डैम, सलाल प्रोजेक्ट, रिहंद, हीराकुंड डैम है। बहुत सारे डैम है जो हमारे बिजली पैदा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी, द न्यू कॉन्सेप्ट। टाइडल, आपको पता है कि टाइड कहाँ आते हैं, जहाँ पे समुद्र होता है, ओशन में। ओशनिक टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लडगेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड। वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। टाइड आता है, जो फ्लड गेट बने होते हैं, पानी अंदर चला जाता है, गेट को बंद कर दिया जाता है। जब गेट को बंद कर दिया जाता है उसके बाद जब टाइड वापस चला जाता है, एंड दिस वाटर इज रिलीज्ड थ्रू पाइप्स अगेन इन द ओशन एंड दीज पाइप दे आर कनेक्टेड विद टरबाइन। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पाइप्स लगे हैं, इनलेट्स पानी से भरे हैं, टरबाइन लगी है। जब वो पानी वापस जाता है द टरबाइन रन एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भारत में जो ज़्यादा स्कोप है टाइडल एनर्जी पैदा करने का वो है गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड गंगेटिक डेल्टा, जो गंगा का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे टाइडल एनर्जी पैदा करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी। जियो धरती का, थर्मल हीट से। When the heat of the earth is used to generate electricity, that is known as the geothermal energy. In the interior of the earth, as we go in the inside or depth of the earth, the temperature and the heat increase. जैसे जैसे हम धरती की निचाई, धरती की गहराई में जाएंगे बच्चों, हीट और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और कई जगह क्या होता है कि ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक एंड बिकम सो हॉट दैट when it rises toward the surface it convert into steam. ग्राउंड वाटर इतना गर्म हो जाता है उस हीट से कि जब धरती की तरफ वापस जाता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू रन द टरबाइन। जैसे मैंने पहले बताया थर्मल में भी क्या होता है, कोयला जलाया जाता है, पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है। एटॉमिक में भी स्टीम बनती है, टरबाइन चलती है। इसमें ऑटोमेटिक स्टीम बनी है, इसीलिए ये हमारा रिन्यूएबल है, किसको हम रिन्यू कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा। धरती की हीट से है, जब तक धरती रहेगी हीट बढ़ती रहेगी, और जब हीट बढ़ती रहेगी तो पानी जो है ग्राउंड वाटर कन्वर्ट होता रहेगा स्टीम में, और दैट स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाइप डाल दी जाती है, उस पाइप से स्टीम बाहर आती है, टरबाइन से कनेक्ट होती है, टरबाइन चलती है, बिजली बनती है। कई बार हम पानी को इंसर्ट भी कर देते हैं, जो हीट का इस्तेमाल करने के लिए पानी को एक पाइप से डाला जाता है, दूसरी पाइप से जो है स्टीम बाहर आती है। भारत में बहुत जगह ऐसे झरने हैं जहां गर्म पानी निकलता है, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज ओनली 2 एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। वन इज नियर पार्वती रिवर इन मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश एंड अदर इन पूगा वैली लद्दाख जम्मू कश्मीर। लद्दाख और हिमाचल के मणिकर्ण में 2 जगह यह प्लांट लगाए जा रहे हैं। Next is biomass energy. Shells, farm waste, animals and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. In rural area, this is known as the gobar gas plant. Decomposition of organic matter yield gas which has higher thermal efficiency comparison to kerosene, dung cake and charcoal. गाँव में लकड़ी और आपको पता होगा कैटल डंग केक का इस्तेमाल, उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। That release more smoke, environment friendly नहीं होता। Instead of using that, if the animal, human and plant waste is used to produce the energy, this is known as the biomass or gobar gas plant. And gobar gas plant, it is twin benefit for farmers. दोहरा लाभ देते हैं। नंबर 1,
इससे लकड़ी का इस्तेमाल बचेगा, धुआं नहीं निकलेगा और ज़्यादा एनर्जी लेवल जो है किसानों को मिलेगा। एंड सेकंड, द रिमेन ऑफ एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, इट बिकम्स ए गुड क्वालिटी मैन्योर दैट कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से अच्छी एनर्जी के साथ साथ उनको एक अच्छी खाद भी मिलेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं काटी जाएगी। नाउ मैप वर्क, अभी हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन जो भारत में है कुछ एक, वो आपके सामने हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पहला है नरोरा, जो रेड कलर में आप इसमें ट्रायंगल में देख सकते हैं मैप में, उत्तर प्रदेश में। सेकंड रावत भाटा, कोटा के पास गुजरात में। थर्ड काकरापारा, गुजरात में। काकरापारा को आप याद रख सकते हैं, जैसे ढोकला और जैसे हम खाते हैं ना गुजराती भोजन, तो काकरापारा गुजरात में। तारापुर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कंट्री, महाराष्ट्र में, बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे। कायगा, क से याद रखना, कर्नाटका, कायगा कर्नाटका में। कलपक्कम तमिलनाडु में। These are some important nuclear power plants of our country. Now some thermal power plants, important power plants बहुत सारे हैं वैसे तो, important जो है इनमें मुख्य उरन, नासिक के पास महाराष्ट्र में। देन नवेली तमिलनाडु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोरे तमिलनाडु और आंध्रा के बिल्कुल बॉर्डर पे है तमिलनाडु में। देन उसके बाद है विजयवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका आंध्र प्रदेश में। रामागुंथम, याद रखना बच्चों, रामागुंथम तेलंगाना में। तलचर उड़ीसा में। जैसे आपको पता है ज़्यादातर थर्मल पावर उन एरिया में मिलते हैं जहाँ पे कोयल माइंस हैं, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है। तो तलचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट। एंड नामरूप, जैसे असम का पुराना नाम था कामरूप, वैसे नामरूप यह जो एक थर्मल पावर प्लांट है असम में। So these are some important nuclear and thermal power plants. Now the important question, difference between conventional and non-conventional source of energy. आपको पता चल ही चुका है। Conventional, these are mostly fossil fuel like wood, coal, natural gas and petroleum. They are known as non-renewable source of energy because they are not easy to renew. They are common in use, so-called traditional source of also. They are commercial industrial source of energy because we have to pay them, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ता है पेट्रोल कैरोसिन के लिए, गैस के लिए। दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेस। दे कॉज पोल्यूशन एज दे एमिट स्मोक एंड ऐश। देयर जनरेशन एंड यूज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर। दे आर इजी टू यूज, आसान तो है, बट देयर कॉस्ट इज वेरी हाई। नॉन कन्वेंशनल, दोज नॉट कॉमन इन यूज लाइक सोलर, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी। They are known as renewable source of energy because we can renew them. They are mostly used for individual purposes. They are infinite in nature. ये कोई limited नहीं है, unlimited है। They don't cause much pollution as compared to conventional. Less amount is needed for their generation and use. Due to some reason, they are not so common in use. So these are difference between conventional and non-conventional source of energy. Now, why conservation of energy resources? क्यों और कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं? जैसा कि हमने मिनरल्स के लिए किया था, एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। जीवन के हर क्षेत्र में हमें एनर्जी चाहिए। आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको जीने के लिए एनर्जी चाहिए। आप ऑनलाइन क्लास चलती है, आपको फ़ोन, उसमें भी एनर्जी चाहिए। सो डे बाय डे द यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर बिकमिंग हाई। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो ऐसा ही एनर्जी रिसोर्सेज के साथ भी है। हमें पोल्यूशन फ्री अगर हमारी धरती चाहिए, अगर हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, अगर हमें सस्ती दर पे एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें वो बचाने होंगे। नाउ द क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेव एनर्जी रिसोर्सेज? एनर्जी रिसोर्सेज को या एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं? बच्चों, एक लाइन हमेशा ज़िंदगी में आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टू सेव एनर्जी इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं तो हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। एंड हाउ कैन वी डू इट?
लाइक मोटिवेट यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। खुद के व्हीकल की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग में, बस में यात्रा कर सकते हैं। स्विच ऑफ लाइट व्हेन नो नीड, स्विच ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन देयर इज नो नीड। ट्राई टू यूज अल्टरनेट रिसोर्सेज, प्रमोट यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी। इवॉल्व न्यू टेक्निक दैट कैन सेव पावर्स, उस टेक्निक को हमने इवॉल्व ईजाद करना है जो कि पावर एनर्जी को सेव कर सकें। ऑलवेज कीप इन माइंड आवर फ्यूचर जनरेशन। लर्न लेसन फ्रॉम एपिडेमिक लाइक कोविड-19। देखा होगा आपने, बहुत क्राइसिस आया था, एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमें बिजली, पानी, सभी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव रखना है। यूज ऑफ सोशल मीडिया टू मेक अवेयरनेस among people about conservation of energy. So these are some way by which we can conserve, we can save energy resources. Now some important question of the chapter. Conservation of minerals is need of our why. Define some way by which we can conserve our minerals. What are energy resources? Explain them briefly. Write down difference between conventional and non-conventional source of energy. Most of the government nowadays shifting their focus on more and more use of non-conventional source of energy. Why? Or non-conventional source of energy is the future of coming generation. Explain. Solar energy can solve the problem of energy crisis in our country. How? कैसे जो है सोलर एनर्जी भारत में एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकती है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट टाइम। नाउ शो इन द मैप ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपने दिखाने हैं बच्चों, नरोरा, रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, कायगा, कल्पक्कम, और कुछ थर्मल पावर स्टेशन भी आप दिखाने हैं। कौन कौन से हैं भला? नवेली, तलचर, विजयवाड़ा, रामागुंथम एंड नामरूप। So these are some important questions that can come in CBSE exam. So hope आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे से करना है स्लाइड्स, और इस टॉपिक का वीडियो लेसन देखने के लिए आप सामने दिए गए YouTube लिंक और दूसरे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको इस टॉपिक का वीडियो लेसन प्रोवाइड करेगा। यह 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूट्यूब पे है और गूगल ड्राइव में है। आप जहां भी आपको इजी लगे, यू कैन क्लिक ऑन द गिवन लिंक एंड यू कैन सी द वीडियो लेसन ऑफ द गिवन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।